last date for public suggestion was 16th of May, and now maybe the government may be in the process of notifying the rules. Friends, the law was amended effective from 9th March 2019. And the rules ought to have come within a few months of that. So it is late by more than 6 years. The rules are even not notified today also. We don't know what will happen. But the fact is, even today also it is late by more than 6 years. Now, what are the structural these things? As we know, Chapter 13B was added to the Act effective from March 19. Chapter 11B is being added to the rules. Now, the starting point is some of the parent rules are being made inapplicable to housing societies because housing society special rules are being enacted under Chapter 11B. So the consequential amendments are that a number of rules, Rule 4, Rule 19, Rule 86A, all these rules have been made inapplicable to housing society because those have been enacted within this new chapter, shifted to the new chapter with some changes. And let us admit that some of the proposed rules are really salutary. It may make a difference to the working of the cooperative societies. Friends, so up to Chapter 11A में से कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं होगी हाउसिंग सोसाइटी को, एंड 11B के अंदर प्रोविज़न आया. इसके बाद में चैप्टर ख़त्म होने के बाद रेस्ट ऑफ द रूल्स में से कुछ चेंजेस ऐसे किए गए हैं. से फॉर एग्जांपल कुछ फॉर्म्स थे J1, J2 रिगार्डिंग एक्टिव मेंबर, नॉन एक्टिव मेंबर, all those were not applicable to housing societies, and therefore those forms have been deleted. M1 to M19 करके जो फॉर्म थे which is exclusively related to the election in the cooperative institutions, because now we have the separate election rules for cooperative societies under the Pacific Authority at Pune. These forms have also been deleted, M1 to M19. Then after Form Y in the main rules, 5 forms have been added, Y1, 2, 3, 4 and 5. ये जो फॉर्म है वो जो नई सिस्टम आई, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के लिए Y1, हाउसिंग एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एसोसिएशन जिसमें 5 सोसाइटी और 2 सोसाइटी रजिस्टर कर सकती है, उनके लिए फॉर्म Y2. Y3 इज द डिपार्टमेंटल फॉर्म जिसमें रजिस्ट्रार हैज टू मेंशन व्हाट एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड एंड नेम रजिस्ट्रेशन बी डन. Y4 and Y5. Y4 is for provisional membership. As we know, the concept of provisional membership was for the first time introduced effective of March 19, the major amendment, and there were no rules for that. So there is a special form Y4 which the society need to use for the purpose of provisional membership application. And equally important, for the legal heir to become member of the society, previously we used to use form 15, indemnity in 17 and all these things. Now the form is Y5. Now I will come to the complete new set of rules which are exclusively applicable to housing societies. Most of the time I will have to talk to you verbatim rules, but I will point out the crucial additions made in the rules compared to those rules which are not made applicable now. When I say now, friends, so far the rules have not been notified. So as and when they will be notified, it will be applicable. The one which I am presenting will be applicable only and only after the rules are notified. But we go on the basis that the new rules are like this whenever they come in effect. रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी पहले रूल 4 था, अभी रूल 106C2 है. 106 1 से लेके 14 तक एडिशन हुआ है. 106(1) के अंदर वो लिखा हुआ है जो मैंने पहले बोला कि ये रूल से अप्लाई नहीं होंगे. 2 के अंदर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के रूल है, रूल 4 एंड रूल 5, उनके बदले ये नया रूल आया है 106. नाउ
application for members registration, reservation Y1, as I told you, resolutions, appointment of chief promoter, authorizing him to open the bank account. These are the standard requirement. There is no change in that. The new concept of association of societies, which can be formed if there are 5 societies in the complex. And if there are less than 5 societies, then the entity will be cooperative housing association. It's such a fine difference between the two. Association of societies means 5. And if there are no 5 societies in the compound or the complex, what you can register is cooperative housing society. Friends, now why do we go for housing societies? Previously, we used to have the concept of federal society. If there are more than 5 societies in a compound, then they can form a federal society. Instead of that, now it will be association of societies. For that, there are forms, as I told you, Y2 and Y3. One very important change. पहले अगर रजिस्ट्रेशन प्रपोजल में कुछ भी शॉर्टकमिंग्स है तो रजिस्ट्रार को बहुत अच्छा रीजन मिलता था एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का. नाउ दिस इज अ प्रोविजन विच इज आई बिलीव अ सैल्यूटरी प्रोविजन. रजिस्ट्रार कैन नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन but give a chance to the promoter to make necessary amendments. So this is something which may help the societies or the new societies to register. Because ये बहुत अच्छा हैंडल था रजिस्ट्रार के पास. कुछ भी मिस्टेक हुआ है दिस दैट तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट ही विल यूज टू रिजेक्ट. सो दैट विल नॉट हैपन नाउ. वन मोर सैल्यूटरी प्रोविजन. कोई टाइम लिमिट रखा नहीं था. Now the registrar shall dispose of the application for name reservation within 30 days. So this is also a very salutary provision. Now coming to fees and all these things. पहले रूल 4 के अंदर फी का स्ट्रक्चर था. वो स्ट्रक्चर अभी नए प्रोविजन में आया है 106C. उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट ओनर जो सोसाइटी है, फ्लैट ओनर सोसाइटी वी नॉर्मली कॉल इट, विच इज under the project is called tenant ownership housing society, tenant co-partnership housing. Co-partnership are the flat owner society and tenant ownership societies are which one? जिसमें plot is owned by the society and the plot of land is given which is owned by the society. Members own the plot and it is conveyed to the society under the management of the society. That is called the tenants ownership housing society. इसमें 5,000 का फी है फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस. हाउसिंग सोसाइटी की और कोई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, हाउसिंग सोसाइटी ऑफ बैकवर्ड क्लास, सोसाइटीज ऑफ लोक आवास योजना, जिसका फीस 50 रुपीज़ है खाली. फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन जो हमने बात किया वो, और एसोसिएशन सोसाइटी का फीस 5,000 है. मीन्स प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पजेज हमारे जो 4 कैटेगरी आया, चार का फीस है 5,000 रुपीज़. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज फ्रेंड्स, रूल 19 जो है पेरेंट रूट के अंदर विच इज मेड इन एप्लीकेबल टू हाउसिंग सोसाइटी. हाउसिंग सोसाइटी उसके लिए है 106C. जब अमेंडमेंट आए तो एक प्रोविजन पर्टिकुलर ऐड किया गया था, डेफिनेशन ऑफ पर्सन. नया सेक्शन था उसमें, मैं बोला मार्च 19 में 154B1 सब सेक्शन 20. इसमें पर्सन के डेफिनेशन थी और पर्सन की डेफिनेशन में कुछ ऐसी नई कैटेगरी आई थी जो कॉरपोरेट गिनी जाती है, नॉट इंडिविजुअल. जिसमें HUF था, जो पहले HUF को मेंबरशिप नहीं मिलता था, मार्च 19 से मिला. फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फैमिली ट्रस्ट, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, एसोसिएशन, लोकल बॉडीज, ये जो कैटेगरी है जो सबसेक्शन 20 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उस इसलिए रूल 19 को निकाल के रूल 106(4) के अंदर दे हैव ऑल बीन इंक्लूडेड. दैट मीन्स दोज मेंबर्स शुड बी क्वालिफाइड अंडर रूल 106C फॉर द पर्पज ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो प्रीवियसली दे वर नॉट एलिजिबल टू बी मेंबर. द कॉमन एग्जाम्पल इज फैमिली ट्रस्ट, HUF, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज. उनके लिए फॉर्म भी जैसे मैंने बोला Y4 है.
all these forms. So Rule 19 is replaced by Rule 106C4. टोटली एक नया प्रोविजन आया है, प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ प्रोविजनल मेंबर. नाउ फ्रेंड 106C6 and 7 आर दी टोटली न्यू प्रोविजन जो हम लोग 6 साल से वेट कर रहे थे, वो कि प्रोविजनल मेंबर को कैसे एडमिट करना और लीगल हेयर को कैसे एडमिट करना. पहले हमारे पास क्या था, बायलॉ नंबर 34 फॉर द पर्पज ऑफ नॉमिनी मेंबर्स एंड बायलॉ नंबर 35 फॉर द पर्पज ऑफ लीगल हेयर, जो सेक्शन 30 से गवर्न होते थे. मार्च 19 में वो निकाल के नया सेक्शन आया 154B8 और उसके रिलेटेड रूल्स अब भी आ रहे हैं. काफ़ी क्लैरिफिकेशन है एंड मे बी यूजफुल इफ टाइमली नोटिफाइड. से फॉर एग्जांपल application in form number Y4 for nominee member. Then if there is more than one nominee, then all nominees will make joint application. This is an important provision. Where a member of the society dies without making a nomination or no nominee comes forward, nominee nominate किया है लेकिन they don't come forward for transfer, the society shall invite application from legal heir of the deceased member for admitting as a provisional member. सोसाइटी को थोड़ा आइडिया है कि ये शायद उनके रिलेटिव फैमिली मेंबर है, लीगल हेयर है, तो उनको इनवाइट कर सकती है, जो पहले बायलॉ नंबर 35 में था, जो इसके पैरेलल था. और इसके लिए पब्लिक नोटिस देना होगा एटलीस्ट इन 2 लोकल न्यूज़पेपर. बायलॉ नंबर 34 का रिक्वायरमेंट जो था वही है प्राय इधर. और इट शुड बी एग्जिबिटेड इन द नोटिस बोर्ड ऑफ द सोसाइटी. सो दीज आर द कंप्लायंसेस फॉर द पर्पज ऑफ एडमिटिंग provisional member. After taking into consideration application received and after making such inquiries as the committee deems fit, in circumstances prevailing, the committee shall, important, if it is of opinion that a person is a legal heir or representative of the deceased member, admit the legal heir as a provisional member. जब कंफर्म लीगल हेयर नहीं है और सोसाइटी को लगता है कि नॉमिनी है नहीं या तो नॉमिनी आगे नहीं आ रहा है, तो किसको एडमिट करना, तो वो एडमिट करने के लिए प्रोविजनल मेंबरशिप आएगा. इवन दो दैट पर्सन इज अ लीगल हेयर, ही शैल बी और दे शैल बी एडमिटेड एज अ प्रोविजनल मेंबर. प्रोविजनल मेंबर इज व्हाट, इट हैज बीन डिफाइंड इन द एक्ट इटसेल्फ. 154B1 सबसेक्शन 18 के अंदर 4 कैटेगरी है, जॉइंट मेंबर, प्रोविजनल मेंबर एंड रेगुलर मेंबर, एसोसिएट मेंबर एंड द मेंबर. सो इसके अंदर ये प्रोविजनल मेंबर के लिए ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होता है, विच इज गवर्न बाय 106C4. इफ देर आर मोर क्लेमेंट, समझो कि कोई भी आ जाता है क्लेम करने के लिए, इफ देर आर मोर देन वन, देन व्हाट विल हैपन, दे शैल बी आस्क्ड टू मेक एन एफिडेविट एज टू हु शुड बिकम द प्रोविजनल मेंबर. द पर्सन नेम्ड इन द एफिडेविट शैल फर्निश एन indemnity bond along with the application as. This is so far as the persons come together without dispute. अगर dispute है सबके बीच में, तो the society will only say, please get the succession certificate. You have no business to apply for membership or provisional membership also. So that requirement is the claimant do not come to agreement as to who should be the provisional member. The committee shall call upon them to produce a legal heirship certificate or succession certificate or letter of administration from the competent court. So if they come together and sit together and apply, they can become the provisional member. If there is a dispute and they are not ready to sit together, then even the nominee member cannot be admitted. They can be asked by the society. But if they come together, society is under duty bound to admit them as a provisional member. Now friends, provisional member का जब बात चल रहा है, तो it is very important to note that जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इंद्रानी वाही के केस में, उसमें कंपल्सन था कि सोसाइटी हैज़ टू एडमिट द नॉमिनी एज अ मेंबर, क्योंकि वो टाइम देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल मेंबरशिप and therefore friend that member shall be deemed to be the provisional member. So that judgment will applicable to us. So society cannot refuse to admit the provisional member if there is a nomination. It is compulsory. Society cannot have any excuses, and that judgment is squarely available to provisional membership also. Then the next comes the
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ये सभी प्रोविजनल मेंबर एज वेल एज है लीगल हेयर का एप्लीकेबिलिटी है। आई रिपीट 154B13 का जो नया एक्ट आया था उसमें लिखा हुआ है कि द लीगल हेयर विल हैव अ राइट टू अप्रोच द सोसाइटी विथ वन ऑफ द 4 डॉक्यूमेंट्स। विच 4 डॉक्यूमेंट्स? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, हेयरशिप सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट। ये प्रोविजन एक्ट का है 154B13। उसके रिलेटेड प्रोविजनल मेंबर का मैंने बता दिया। द नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट? लीगल हेयर कैटेगरी। अभी लीगल हेयर कैटेगरी के अंदर बायलॉज में प्रोविजन अभी तक भी बायलॉज नंबर 35 है, लेकिन इधर क्लैरिफिकेटरी रूल्स है बहुत अच्छी तरह से, मतलब कि मेरे हिसाब से तो इसका सैल्यूटरी प्रोविजन। आई विल रीड इट वर्बेटिम। आफ्टर डेथ ऑफ मेंबर और एनी ऑफ द जॉइंट मेंबर्स, एज यू नो जॉइंट मेंबर का कॉन्सेप्ट भी नया है। पहले जॉइंट मेंबर को हम लोग एसोसिएट मेंबर बोलते थे, राइट? द पर्सन हुज नेम डज नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द शेयर सर्टिफिकेट इज ए एसोसिएट मेंबर अंडर द ओल्ड प्रोविजन। अंडर द न्यू प्रोविजन, द पर्सन हु इज हैविंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी, आई मीन द फ्लैट के अंदर इंटरेस्ट है, उसका शेयर है, जॉइंट होल्डर है और उसका नाम पहला नहीं है, तो उसको एसोसिएट नहीं बोला जाएगा, जॉइंट मेंबर बोला जाएगा। जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3 लाइक दैट। अगर 4 ओनर है तो मेंबर J1, J2 एंड J3। तो ये इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज that after death of any member or any of the joint members, the legal heir of such member or any of the joint members may enter into a duly registered deed of family arrangement. Now friends, it is the word is duly registered deed of family agreement. Please do not misunderstand with family settlement agreement. I will give the difference between the two. Family settlement agreement is an MOU kind of things between the members कि डिसीज की ये प्रॉपर्टी थी, इसमें से आई एम रेडी टू टेक दिस, अगेंस्ट दैट आई एम रेडी टू गिव यू दिस। दूसरे 2 लोग है बोलते हैं मेरे पास 4 है तेरे पास 5 है तो हम एक्सचेंज करते हैं। द 5th लीगल हेयर बोलता है कि मेरे पास कोई एक्सचेंज के लिए ऐसा नहीं है तो आई विल गिव दिस टू यू। सो ये जो अलग अलग डॉक्यूमेंट है जिसको हम रिलीज डीड बोलते हैं, गिफ्ट डीड बोलते हैं, डीड ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, या तो समटाइम्स सेल डीड ऑल्सो। These documents are the real documents of transfer of interest in the property. लेकिन इसके लिए जो एग्रीमेंट है, मैं ये करेगा, ये एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इसलिए वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल नहीं था। लेकिन अभी जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो ये है कि ड्यूली रजिस्टर्ड डीड ऑफ फैमिली अरेंजमेंट मीन्स आप डीड ऑफ ट्रांसफर बना सकते हैं जिसमें सब चीज़ लिख सकते हैं, किसका क्या प्रॉपर्टी है, किसको जाता है, क्या जाता है वो, एंड देन दैट विल बी रजिस्टर्ड। और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर सोसाइटी को दिया गया एलोंग विद द ट्रांसफर मेंबरशिप के फॉर्म जो हमने बोले वो, देन द लीगल हेयर कैन बिकम मेंबर बाय कंप्लाइंग दिस प्रोविजन। बायलॉज में चेंजेस ये रूल्स होने के बाद आ सकते हैं इमीडिएट, बट आई विल स्टिल रीड इट वर्बेटिम बिकॉज देर आर सर्टेन critical parts which I would like to bring to your notice. वाई 5 के अंदर अप्लाई करेंगे टू सोसाइटी along with duly registered deed of family arrangement and indemnity bond. indemnity bond अभी भी है, नॉमिनी के लिए फॉर्म नंबर 17 है, 18 है और लीगल हेयर के लिए 19 है आज की डेट में भी। बट ये जो indemnity bond और सब करेंगे एंड अप्लाई करेंगे along with the copy of registered deed of family settlement. अभी जो clause C है, we must understand this clause C because it has direct conflict with the certain decided cases of Bombay High Court particularly and some of them Supreme Court. I will read it verbatim. The committee shall, after receipt of application, immediately publish a public notice in 2 local Delhi newspaper having wide circulation, inviting any claim or objections regarding proposed transfer of share, right, title and interest in the flat held by deceased member or joint member. Such notice shall also be exhibited. Now friends, I don't know how and why this kind of rules are being proposed. The reason I tell you, there are umpteen number of cases decided by the Supreme Court as well as the Bombay High Court that once
Once a duly stamped and registered document of title to the property is presented to the society, society must act upon that. Society cannot dissect that document, cannot go behind that document. कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर होकर आया, सोसाइटी बोलती है नॉमिनी के पास राइट नहीं था. द जजमेंट इज आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आया है, यू हैव नो राइट, समबडी हैज टू चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ. कितने जजमेंट, 4-5 तो मैं अभी आपको बताएगा. जैसे कि RNA क्लासिक है, वीडियोकॉन अप्लायंसेस है, पैरामाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, पूनम कोऑपरेटिव सोसाइटी. देयर आर मैनी जजमेंट जिसमें कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि सोसाइटी को, इट इज नॉट सोसाइटी बिजनेस कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है, वो काम कोर्ट का है. आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आया, एक्सेप्ट करो और उससे आगे बढ़ो, उसके पीछे मत जाओ. वेयर एज इधर क्या प्रोवाइड किया गया है, रजिस्टर्ड फैमिली अरेंजमेंट डीड होने के बावजूद भी सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ पब्लिक नोटिस. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दोज जजमेंट्स? So this rule is really doubtful rule. How can the society question the legality of a registered document? It is a function of the court. So again, it is the same disputable things are going to happen. Next, if no claim or objections are received within the prescribed time, then only it will transfer. Otherwise, it will not transfer. So what is the use of registered document? Why do you provide for that? Again, next E. If any claim or objections are received from any person claiming to be the legal heir of the deceased member or joint member, or having any dispute pertaining to the duly executed family arrangement, then the committee shall not transfer the right, title, interest of the deceased member and inform such legal heir to obtain a legal heirship certificate or letter of administration from the court of competent jurisdiction. एक बार रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आ गया, फिर किसी को भी दूसरा क्लेम है, तो that person has to challenge the itself. A, B, C, D, E, ये 5 लोग अगर लीगल हेयर है और ABCD के बीच में डॉक्यूमेंट हो गया और EU is also legal heir, say for a stepson for example, so in that case he has to approach the court. Society should not stop the process when the registered document is given. So this is regarding, and a very important topic, regarding admission of provisional member and admission of legal heir. Next rule is regarding training of the member, officer and employees of the housing society. Friends, इसको डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोसाइटी हैज़ टू ऑर्गेनाइज training of 3 hours for the members of the society, committee members of the society and officers of the society every year. It is a compulsory to have a training, और वो ट्रेनिंग जो फेडरल सोसाइटीज है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, उनके थ्रू होता है. एज फार एज ऑल ऑफ अस हियर इन वेस्टर्न सबर्ब आर कंसर्न, MSW के पास वो अथॉरिटी है, तो दे आर ऑथोराइज टू कंडक्ट द ट्रेनिंग एंड गिव द सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग टू द सोसाइटीज. सो दिस इज रिगार्डिंग द ट्रेनिंग विच इज कंपल्सरी. नाउ नॉमिनेशन ऑफ पर्सन, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि नॉमिनेशन पर्सन वॉज गवर्न बाय रूल 25 इन द पेरेंट रूल्स. नाउ 25 इज नो मोर एप्लीकेबल टू हाउसिंग सोसाइटीज. इट इज अवेलेबल, there is a special provision 106C8, nomination of person. A member or a joint member of cooperative housing society may nominate any person or person for provisional membership by submitting prescribed nomination. Nomination prescribed by form number 14, we know. Form number 14 हमें triplicate में देना होता है, triplicate. The last one, third page will be given by society on the spot. हमें application मिला, first and second रखेगी. जब कमिटी में रिकॉर्डिंग होगा तो सेकंड विल बी गिवन टू द मेंबर कि वी हैव रिकॉर्डेड योर नॉमिनेशन एंड दिस इज द रिजोल्यूशन डेट एंड ऑल दिस थिंग, एंड द फर्स्ट कॉपी विल रिमेन विद द सोसाइटी. दिस इज द प्रोसीजर. जो चीज़ उधर था रूल 25 में, वो यहाँ आया है 106C8. लेकिन एक दो इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, रूल में है लेकिन फॉर अस इट इज अ क्लैरिफिकेटरी. व्हाट इज दैट? अगर देर आर जॉइंट मेंबर, देन जॉइंट मेंबर
can give a separate nomination. Say for example, Mr. A and Mrs. B, son and mother, though 50-50 owner है, both of them can nominate separately. Say for example, son may nominate his wife, for example, and the mother may nominate the son himself, who is a member of the society, joint member. So ये दोनों फॉर्म अलग देना है, और जब भी प्रोविजन आएगा कि वन ऑफ देम एक्सपायर, देन उसका नॉमिनेशन इफेक्ट में आएगा, बट दैट हैज बीन क्लैरिफाइड इधर. अभी जो सेक्शन आता है फ्रेंड्स 106C10 इज अ वेरी इट इज रिगार्डिंग फाइनेंस. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑलरेडी आ गए हैं. मैंने खुद के भी, मेरा लास्ट टाइम का जो आर्टिकल था जून का MSW में, इसमें था. और अभी जो प्रोविज़न आज का जो है फाइनेंस के बारे में 106C10, आई विल प्रीफर कि मैं C10 C11 दोनों रिगार्डिंग फाइनेंस. मोटा मोटा हम लोग जानते हैं कि लैंड का जो वैल्यू है उसका 10 टाइम्स बोरो कर सकते थे. अभी तक क्या प्रोविजन था? नेविगेटिंग द न्यू लैंडस्केप विद महाराष्ट्र ड्राफ्ट हाउसिंग सोसाइटी रूल्स. द प्रपोज्ड ड्राफ्ट महाराष्ट्र हाउसिंग सोसाइटी रूल्स are set to significantly impact the redevelopment of cooperative housing societies. Society members must understand both the advantages and potential challenges these amendments introduce. I have attempted in this article to draw your attention to the following issues. Following issues के अंदर there are 5 sections, A, B, C, D, E paragraph. Redevelopment today. Existing framework, currently housing societies undertake redevelopment, follow the guideline issued by under 79 by the department, और bylaws में भी प्रोविजन है. A key requirement is गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है 3 जनवरी 2009 का गाइडलाइन, उसके हिसाब से आज की डेट में होता है. बी, इम्पोर्टेंट स्टेप्स अंडर करंट सिस्टम इंक्लूड्स 14 दिन का नोटिस देना है. 2/3 मेंबर प्रेजेंट होते हैं. गवर्नमेंट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रजिस्ट्रार आता है. देन वीडियोग्राफिंग होता है. एंड टोटल मेंबर ऑफ द सोसाइटी का 51% मेजोरिटी सपोर्ट करना चाहिए. अटेंडिंग मेंबर नहीं, टोटल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उसका 51% शुड वोट इन फेवर ऑफ द रिडेवलपमेंट रिजोल्यूशन एज ऑफ टुडे. अभी गेम चेंजर फॉर फंडिंग, दिस इज पैराग्राफ C ऑफ माय सर्कुलर. प्रपोज न्यू रूल्स. द ड्राफ्ट रूल्स introduce several pivotal changes that directly impact redevelopment, providing a clear and more legally binding structure. What is that? Enhance borrowing capacity for redevelopment. जैसे मैंने बोला कि 10 times the cost of land. Perhaps the most significant amendment concerns a society's ability to raise funds for redevelopment. While a housing society's general borrowing is typically limited to 10 times its existing paid up capital, accumulated reserves and members' contributions minus losses, the new draft rule offer a crucial exception for the redevelopment. ये रूटीन के लिए नहीं है, ये redevelopment के लिए है borrowing. A housing society may borrow up to 10 times the value of the land based on valuation report obtained from a government approved valuer specifically for redevelopment purpose. Means government approved valuer तो है ही. Now we know when the government approved valuer comes in picture, what we face, but that is what is provided for. This change is a major breakthrough. It provides a clear and significantly expanded financial framework for societies sitting on valuable land parcel. It means it will be much easier to secure necessary capital from bank or financial institutions, thereby reducing heavy reliance solely on developer funding और large upfront contribution from individual members, जो normally very difficult रहता है. Every member cannot contribute heavy amount. This new provision can directly benefit redevelopment by making projects financially more feasible and potentially giving societies more leverage in negotiations with developer, even exploring self-development. इसमें बहुत से ऑप्शन आ सकते हैं. डेवलपर है तो भी काफ़ी ऑप्शन आ सकते हैं. Statutory reinforcement of meeting requirement.
ये जो पहले जो मैंने प्रोविजन पढ़े ना, 14 दिन का नोटिस, 2/3 मेजोरिटी, 51, ये सब सेम डिटो टू डिटो न्यू के अंदर भी है। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है, लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन। Even though the rules have been notified, there are salutary, the fact remains that there are the challenges. What are these? While the new rules bring many positive changes, it's important for societies to be aware of potential downsides. What are these? Increased bureaucratic and administrative work. सोसाइटी को काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ेगा. Stricter compliance requirement, while aim at improving the transparency might lead to more paperwork. Navigating the detailed procedures and ensuring all steps are meticulously followed will require diligence from managing committee. Next problem है reliance on government approved valuer, जो मैंने वही टाइम बोला. The new borrowing limit heavily depend on the value of the land as per the valuation report obtained by the society from a government approved valuer. There might be delay in obtaining the valuation report because of the shortage of valuer. That is very much possible. There are also potential for dispute over valuation figure. गवर्नमेंट वैल्यूअर है, वो बोलेगा नहीं इतना है, आप बोलेंगे हमारा लैंड का वैल्यू 5 करोड़ है, वो बोलेगा नहीं 3.5 करोड़ है. ये सब इश्यूज जो है. और फिर रजिस्ट्रार विल ऑल्सो सम टाइम ऑब्जेक्ट, ये वैल्यूएशन सही नहीं है, सही है. जैसे इनकम टैक्स में भी हितेश भाई होता है वैल्यूएशन जब दूसरे काम के लिए. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल कम एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑल्सो. And then what happens, we are aware. So these are the problems which we are going to face. And the last but not the least challenge is 51% total membership का वो आज भी difficult है, और ये नए provision में भी वो difficulty तो रहने वाली है. What is that? I repeat. Total strength of the membership का 51% resolution होना चाहिए redevelopment के लिए. Not the people who remain present and vote. उसका 51% नहीं, total. So this is my detailed article on this particular topic. It will be useful because ये काफ़ी चीज़ इसमें कवर हो जाती है. जो मैंने बोला है ना, 10610 condition for borrowing by society with limited liability. Now again one more provision, parent provision जो है रूल 35 to 48, वो अभी हाउसिंग सोसाइटी को अप्लाई नहीं होंगे. वो सभी के प्रोविजन का हम बोलते हैं कि कंप्रेस करके इधर लाया गया है कि फंड क्रिएट करने की बात. रिजर्व फंड सोसाइटी एस्टैब्लिश करेगी. रिजर्व फंड में क्या आएगा, आज आता है वही एंट्रेंस फीस आएगी, ट्रांसफ़र फीस आएगी, और सोसाइटी का जो ईयरली अकाउंट में जो सरप्लस होता है उसका 25% जो हम लेते हैं, दैट विल बी पार्ट ऑफ द रिजर्व एवरी ईयर. और डोनेशन आएंगे. somehow word transfer premium is missing in this, whereas अभी के bylaws में है कि transfer premium will also be part of the, it will be appropriated to reserve. लेकिन इसमें लिखा है all donation received by society except those designated for specific purpose. specific purpose मतलब कि समझो कि कोई मेंबर बोलता है कि अब पर्टिकुलर पार्ट करने के लिए मैं ये पैसा देता हूँ, तो that will not go to the reserve. That has to be specifically mean for that purpose. लीगल फाइट के लिए, ये इसके लिए, उसके लिए. सिंकिंग फंड का प्रोविजन बाय लार्ज सेम है. उसमें क्लैरिफिकेशन है जो आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, विच आई लाइक इट. दिस फंड शैल बी यूज फॉर हैवी रिपेयर एज अप्रूव बाय जनरल बॉडी. नाउ हैवी रिपेयर फ्रेंड्स एंड सिग्निफिकेंट रिपेयर, हम लोग सब इंग्लिश जानते हैं, इधर स्पीकर भी है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैवी रिपेयर एंड सिग्निफिकेंट रिपेयर? It's a very something, dispute आने वाले है, लेकिन that is what is mentioned here. Sinking fund can be used only for heavy repair and major repair fund can be used for significant repairs. Now God knows what can be the difference, but this is what it is. Now sinking fund 0.25% जनरल बॉडी को अप्रूव करना है. जनरल बॉडी उससे ज़्यादा कर सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है. ओके, जो आज भी प्रोविजन वही है. द ओनली डिफरेंस इज ये किधर यूज़ करना है वो स्पेसिफिकली लिखा है कि इट विल बी यूज फॉर हैवी रिपेयर एज अप्रूव बाय द जनरल बॉडी. हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड जो 0.75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ करंट फ्लैट, ये भी एक क्लैरिफिकेशन इधर है जो अच्छा है. क्या है, सिंकिंग फंड में 0.25 पर एनम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट
मीन्स अभी जो फ्लैट है वो, ये ईच फ्लैट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अभी के प्रोविज़न में नहीं है। सो दिस आर क्लैरिफिकेशन कि हमें लेना है। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज रीडेवलपमेंट आपका हुआ आज की डेट में, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मुंबई में 3,500 से कम नहीं होता है। खराब में खराब कंस्ट्रक्शन होगा तो भी 3,500 तो बाय एंड लार्ज होता ही है। आप सिंकिंग फंड का प्रोविज़न देखिए आपका सोसाइटी का जाके, सोसाइटी डिसाइड किया कि 1,000 रुपया कॉस्ट लेके आगे बढ़ो। इसमें कोई भी सोसाइटी नहीं होगी, लेट मी चैलेंज, कि जिन्होंने डिसाइड किया होगा कि हमारा 3,500 या तो 4,000 के रेट से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और उसका मल्टीप्लाइड बाय एरिया, उसका 0.25% डिवाइड बाय 12 करके हम लेंगे। कोई सोसाइटी नहीं होगी, सभी सोसाइटी ने डिसाइड किया होगा 1,000, 1,500, 2,000। पॉस्ट सोसाइटी है फिर भी। सो इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है, तो ये डिस्प्यूट आने वाले हैं। इट विल बी चैलेंज कि आपको करंट कॉस्ट का लेना था, आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका कॉस्ट इतना आया है, तो उसका आप 25% 0.25 लो। सेम इज फॉर रिपेयर फंड। नाउ सिंकिंग फंड हैज टू बी यूज विद द परमिशन ऑफ द जनरल बॉडी। जो रिपेयर फंड है, रिपेयर फंड कैन बी यूज बाय द कमिटी, जनरल बॉडी में रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। आई विल रिपीट, सिंकिंग फंड यूज करना है तो आपको हैवी रिपेयर के लिए करना है और वो भी जनरल बॉडी डिसाइड करेगी। रिपेयर फंड जो हम कलेक्ट करते हैं 0.75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट फ्लैट, दैट कैन बी यूज बाय द मैनेजिंग कमिटी। उसमें एजीएम का कोई रोल नहीं है, बिकॉज इट इंक्लूड्स रूटीन रिकरिंग रिपेयर्स ऑफ सोसाइटीज बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, स्पेसिफाइड है इसके लिए। लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आगे आया है विच आई टेल यू, जो भी और बॉदरिंग है थोड़ा। मेजर रिपेयर फंड क्रिएट कर सकते हैं। आई विल नाउ रीड इट वर्बेटिम। सोसाइटी में एस्टैब्लिश मेजर रिपेयर फंड, आई विल हैव टू कंक्लूड विद इन आई थिंक 10 minutes, विच आई विल। द सोसाइटी में एस्टैब्लिश मेजर रिपेयर फंड which shall consist of contribution collected from its members at a rate fixed pro rata on an area basis as and when required and decided by the general body. The major repair fund shall be used for significant repair and maintenance work on society's building and property. So these are the fund. There is a education fund, not 10 minutes friend. I have the time, but because question answer के लिए time बचाने के लिए I'll थोड़ा इधर में I'll go little bit fast. एजुकेशन ट्रेनिंग फंड, इलेक्शन फंड, वेलफेयर फंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सोसाइटी में एस्टैब्लिश वेलफेयर फंड विच शैल कंसिस्ट ऑफ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। द वेलफेयर फंड शैल बी यूज फॉर सोशल, कल्चरल एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज। यही प्लेटफॉर्म पे से और सब जगह पे व्हाट्सएप पे भी ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम रिलीजियस फंक्शन सोसाइटी में करते हैं तो उसके लिए कलेक्ट कर सकते थे कि नहीं। तो फ्रेंड्स, लेट मी, हमारे जो रिलीजियस फंक्शन है वो बाय एंड लार्ज कल्चरल फंक्शन भी गिने जाते हैं, जैसे कि गणेश फेस्टिवल में, नवरात्रि में, ऑल दीज आर कल्चरल एक्टिविटीज। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस इज कंपैरेटिवली लेस, एटलीस्ट इन सिटी लाइक मुंबई। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया टिकट लेके हम लोग वरास गरबा इसके लिए जाते हैं। तो दीज आर द कल्चर एक्टिविटीज। हु कैन से कि उधर वो आरती करने के लिए जाते हैं। यू गॉट इट। सो मेरे ख्याल से वेलफेयर फंड जो बात आई है वो अच्छी बात है। खाली आपको वाउचर बनाने के टाइम में लिखना है कि विच कल्चर एक्टिविटी, बच्चों की कंपटीशन, ये खेल वो खेल, एंड चाय पानी नाश्ता लंच डिनर जो भी कुछ करना है। सो दैट इज ए आंसर टू दोज प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस। कॉर्पस फंड, अदर फंड विथ परमिशन ऑफ जनरल बॉडी। The most important part comes now is 106C12. What is this? आज दिन तक जो हमारे रूल्स है, रूल्स के अंदर मेंटेनेंस कलेक्शन करने के बारे में रूल्स में कोई प्रोविज़न नहीं है। जो भी है वो बायलॉज में है। कौन से बायलॉज? बायलॉज नंबर 65, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अंडर विच सोसाइटी कैन कलेक्ट। इसमें एक आइटम है सर्विस चार्ज। बायलॉज नंबर 66 में लिस्ट है कि ये चीज़ सर्विस चार्जेज में आएगा, और बायलॉज नंबर 67, 65 से हर एक हेडिंग लेता है और बोलता है कि ये कैसे लिया जाएगा, ये कैसे लिया जाएगा। ये प्रोविजन नाउ स्पेसिफाइड इन द रूल्स। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट? द बेनिफिट इज
कभी काफ़ी टाइम कोर्ट बोल देती थी कि बायलॉज इज नॉट द लॉ, अगर सोसाइटी ने अलग किया है कुछ इधर उधर तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज 72 सेक्शन में सोसाइटी इज जन बॉडीज होल एंड सोल उसने डिसाइड किया है, बायलॉज में नॉट बी बाइंडिंग। लेकिन अभी वो बाना भी नहीं रहेगा, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ द रूल्स। अब ये रूल्स को मैं थोड़ा डिटेल में जाएगा। हेडिंग क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं वो हेडिंग दिए है सब, सर्विस चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्जेस, लिफ्ट रिलेटेड, कार पार्किंग चार्जेस। वर्ड कार इज एडेड हियर, हमारा अभी रूल्स के अंदर पार्किंग चार्जेस लिखा है, दैट मीन्स पार्किंग में टेम्पो ट्रैवल भी आएगा 3 व्हीलर और हो सकता है 2 व्हीलर भी आए, लेकिन अभी जो लिखा है कार पार्किंग चार्ज, दैट मीन्स प्राइमा फेसी देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि कार पार्किंग का ही चार्ज ले सकते हैं, राइट, बिकॉज ये वर्ड पहले नहीं था, तो वी कैन इंटरप्रेट लाइक दिस। Then interest on defaulted charges. Before I come to that, let me tell you, it has been proposed to be reduced to 12% from 21%. Then repayment of installment, non occupancy charges जो 10% का लिमिट है वो रहेगा। इंश्योरेंस चार्जेस में स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट है, विच आई कम। लीज रेंट में नो चेंज, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स में नो चेंज। वेरियस फंड्स क्रिएटेड बाय सोसाइटी उसका कंट्रीब्यूशन। अभी मैं ऐसा बोल रहा था प्रतीक भाई, इन द लास्ट बिल मार्च महीने में मैं डिसाइड करता हूँ कि पूरे साल का जो मेरा रिपेयर फंड है, सिंकिंग फंड है ना, वो मैं मार्च में ही लेगा। आई विल नॉट कलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी, ताकि मेरा चार्जेस 7,500 से कम ही रहेगा, और मार्च महीने में आई डोंट माइंड पेइंग दिस। तो विल इट बी ओके? सो दैट क्लैरिफिकेशन जो मैंने पहले भी पूछा था, बट हियर विद एग्जाम्पल। कमिंग बैक टू पैरेलल टू बायलॉज 66, सर्विस चार्ज में क्या आता है वो वही सेम आइटम है, एक्सेप्ट नंबर इधर उधर से थोड़ा स्किप हुआ है, बट बाय एंड लार्ज सेम आइटम की सर्विस चार्ज, एंड सर्विस चार्ज विल बी कलेक्टेड इक्वली फ्रॉम ऑल द फ्लैट्स। आई विल रिपीट, सर्विस चार्जेस में क्या क्या आता है? सैलरी ऑफ द स्टाफ, लिफ्टमैन, वॉचमैन, माली एंड एनी अदर। देन सोसाइटी का ऑफिस है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बिल, इलेक्ट्रिक का बिल, फिर प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर लीगल एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन देते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो सर्विस चार्जेस में ली जाएगी, और दैट विल बी इक्वल फ्रॉम ऑल द मेंबर। नाउ दिस हैविंग बीन डन हियर, नाउ द सोसाइटी डू नॉट हैव द लिबर्टी टू टिंकर विद दिस आइटम, बिकॉज दिस अ पार्ट ऑफ द रूल। पहले आप कुछ भी इधर उधर कर देते थे, नाउ इट इज़ कंपल्सरी दैट यू हैव दी मेंटेनेंस बिल। सभी सोसाइटी को एडवाइस लेके मेंटेनेंस बिल का रिव्यू करवा के क्रिटिकली एनालाइज करके नया सिस्टम करना जरूरी हो जाएगा। इफ़ यू डोंट डू इट, किधर न किधर यू विल फेस द म्यूजिक। कमिंग टू अभी सब सेक्शन 3 इज पैरेलल टू बायलॉज 67। इसके अंदर सर्विस चार्जेस इक्वली डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द फ्लैट, नॉट नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर एक मेंबर के पास 4 फ्लैट है तो चारों के लिए वो सर्विस चार्ज लगेगा, एक मेंबर का कंसेप्ट से नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स, इसमें एक एडिशन आया है, और वो भी मेरे ख्याल से अच्छा क्लैरिफिकेटिव अमेंडमेंट है। व्हाट इज दैट? आई विल टेल यू। प्रॉपर्टी टैक्स फिक्स बाय द लोकल अथॉरिटी, उतना ही था पहले 67 में। अभी क्या एडिशन हुआ? फॉर कॉमन एरिया ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया ऑफ ईच यूनिट ऑफ फ्लैट। नाउ समझ लीजिए कि आपकी सोसाइटी में क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, दीज देयर आर लॉट ऑफ कॉमन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पार्किंग एंड एवरीथिंग। ये कॉमन फैसिलिटी का जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो प्रॉपर्टी टैक्स कैसे कलेक्ट करना, उसका कोई गाइडलाइन बायलॉज में नहीं था। नाउ द कॉमन एरिया का प्रॉपर्टी टैक्स सोसाइटी को सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसको एरिया वाइज फ्लैट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, नॉट यूनिट वाइज, एरिया वाइज। 500 फुट का फ्लैट, 1200 फुट का फ्लैट, 2500 फुट ऑफ सेट, ये एरिया वाइज दिस प्रॉपर्टी टैक्स हैज टू गो। नेक्स्ट, वाटर चार्जेस। वाटर चार्जेस में अभी एक अच्छा अमेंडमेंट है, क्योंकि उसमें डिस्प्यूट होते थे। कौन सा मालूम है? इनलेट। अभी काफ़ी सोसाइटी में एडिशनल इनलेट दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा बाथरूम में या तो किचन में दो,
अभी ये सेंक्शन आया कि एज पर सेंक्शन बिल्डिंग प्लान बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दैट मीन्स अगर 2 बेडरूम के फ्लैट के अंदर बीएमसी ने आपको 4 इनलेट दिए हैं तो 4 का 3 या तो 4 का 5 आप नहीं कर सकते हैं। आप करते हैं तो भी चार्जेस यही हिसाब से लेने पड़ेंगे। पूरी बिल्डिंग में टोटली 500 इनलेट है, 500 इनलेट का वर्ष का 5 लाख रुपया आता है, तो 5 लाख डिवाइड बाय 500, राइट, डिवाइड बाय 500 करने के तो एक का आएगा, मल्टीप्लाइड बाय इनलेट इन योर फ्लैट, दैट्स द सिस्टम। इट इज पार्ट ऑफ द रूल, सो यू कैन नॉट डेविएट, यू हैव टू गो एज पर द रूल्स। पहले बायलॉस था तो कुछ भी मैनिपुलेशन होता था, नाउ इट इज पार्ट ऑफ द रूल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर इज रिपेयर्स मेंटेनेंस का, लिफ्ट का। जो बिल्डिंग में लिफ्ट है, अगर आपके 4 विंग है ए बी सी डी, ए विंग में लिफ्ट नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड एंड फर्स्ट है, बी विंग में 4 मंजिला है तो भी एक लिफ्ट है, सी में 7 फ्लोर है तो उसमें भी एक लिफ्ट है, 8 से 12 के बीच में 2 लिफ्ट है और 12 से ऊपर 3 लिफ्ट है। तो जो विंग में जितना लिफ्ट लगा है वो विंग को ही वो लिफ्ट का खर्चा इक्वली सब लोग लेना पड़ेगा। You cannot total all the lift expenses and divide between A, B, C, D wing. It has to be जो बिल्डिंग में जितना लिफ्ट है उसका AMC, उसका मेंटेनेंस, उसका रिपेयर, उसका रनिंग एक्सपेंसेस। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर 4 लिफ्ट है तो उसमें आप ऑपरेटर भी रखेंगे, वेरेज एक लिफ्ट वाले में शायद ऑपरेटर आप नहीं रखे, तो ये सब जो एक्सपेंसेस है विल बी एडेड टू दैट। कार पार्किंग का मैंने बताया था, वर्ड कार इज एडेड। जो पहले जो प्रोविजन था 67 रोमन 7 में वो प्रोविजन था जिसमें पार्किंग चार्जेज लिखा था, कार नहीं था, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। रीपेमेंट ऑफ लोन का चेंज नहीं है। इंश्योरेंस चार्जेस के अंदर क्लैरिफिकेशन है कि एज पर द कारपेट एरिया ऑफ फ्लैट इंश्योरेंस चार्जेस डिवाइड किए जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज ए इंक्रीज इन द इंश्योरेंस प्रीमियम due to storing any specific goods in any flat or unit used for commercial purposes, then the extra burden of insurance premium shall be shared by those who are responsible for such increased premium. Now देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बोलो, सोसाइटी को पता है कि 5 फ्लैट है जिसमें कॉमर्शियल यूज के लिए केमिकल रखे जाते हैं, लेकिन जब इंश्योरेंस सर्वेयर आया तो उसने 3 फ्लैट ही विजिट किया और 3 फ्लैट का वजह से ही उसने एक्स्ट्रा चार्ज लगाया। तो ये वर्डिंग के हिसाब से सोसाइटी को नॉलेज होने के बावजूद भी सोसाइटी विल कलेक्ट फ्रॉम 3 पर्सन्स ओनली एज पर दिस वर्डिंग। यू गॉट इट? क्या वर्डिंग है? हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इंक्रीज प्रीमियम। सर्वेयर लिख के गया कि फ्लैट नंबर 401, 501 और 601 की वजह से एक्स्ट्रा प्रीमियम आया तो 3 के पास से कलेक्ट करो, और वो भी कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। सो ये एडिशनल क्लैरिफिकेशन है। लीज रेंट के बारे में कुछ नहीं। सिंकिंग फंड जो मैंने पहले ही बताया क्या चेंज आया है। रिपेयर फंड के बारे में मैंने बोला मेजर रिपेयर फंड है, नई चीज है। हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड इज ऑल्सो न्यू थिंग, जो वर्डिंग चेंज किया है। पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस था, अभी फंड वर्ड यूज किया है। मेजर रिपेयर फंड कारपेट एरिया के हिसाब से लेना है फॉर ईच फ्लैट एंड यूनिट। हर एक फ्लैट और यूनिट का जो कारपेट एरिया है उसके हिसाब से मेजर रिपेयर फंड कलेक्ट करना है। एजुकेशन ट्रेनिंग हम लोग 10 रुपये के हिसाब से पर मेंबर लेना है, पर फ्लैट नहीं। लेट मी रिपीट, अगर एक कोई मेंबर के 3 फ्लैट है, 3 का बिल अलग जाता है, तो ये जो एजुकेशन ट्रेनिंग फंड का जो 10 रुपया है ना, वो आपको एक ही में लेना है, बिकॉज इट इज मेंबर वाइज नॉट फ्लैट वाइज। क्लियर? इलेक्शन फंड नया है। वेलफेयर फंड नई चीज है, जैसे मैंने बोला कोई भी एडिशनल होगा तो उसको इक्वली बाय मेंबर लेना है। देखिए, इलेक्शन फंड मेंबर वाइज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मेंबर वाइज, फ्लैट वाइज नहीं। वेलफेयर फंड मेंबर वाइज, एनी अदर फंड इज ऑल्सो मेंबर वाइज। इसमें जनरल बॉडी कैन नॉट इंटरफियर। ये जो है वही हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आपको 5 करोड़ का एक्सपेंसेस लीगल में करने की जरूरत पड़ने वाली है सुप्रीम कोर्ट तक, तो 5 करोड़ अगर आप वसूल करते हैं तो आपको वो मेंबर वाइज लेना होगा। एक व्यक्ति का अगर 4 फ्लैट है या तो 4 ऑफिस है तो आप 4 बार कलेक्ट नहीं करना है, एक ही लेना है, बिकॉज इज मेंबर वाइज।
ये डिस्प्यूटेबल था काफ़ी जगह पे, खास करके कॉमर्शियल जगह में, जिधर एक एक व्यक्ति का 4-4, 5-5, 10-10 यूनिट्स होते थे, तब ये डिस्प्यूट आता था। एम्यूनिटी चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग नया, जो पहले नहीं था, ये अच्छा हुआ कि एक क्लियर हो गया। क्लब हाउस, क्लब मेंबरशिप, जिम, स्विमिंग पूल, यूज ऑफ द फैसिलिटी बाय मेंबर, यू कैन नॉट कलेक्ट फ्रॉम ऑल द, पहले वो छुट्टी थी, जनबॉडी डिसाइड करती थी सब लोग देंगे, सब लोग नहीं देंगे, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। एज फार एज नाउ इज कंसर्न, यू हैव टू हैव इट मेंबर वाइज, नॉट फ्लैट वाइज। प्लेग्राउंड, गार्डन एंड जॉगिंग ट्रैक इक्वली डिवाइडेड बाय मेंबर्स, यूज करो नहीं करो फिर भी। लेकिन ऊपर का जो है क्लब हाउस, क्लब मेंबरशिप, इसमें काफ़ी बड़े बड़े डिस्प्यूट अभी भी चालू है, मेरे पास भी है। एक सोसाइटी ने लाइसेंसी को 40,000 रुपये चार्ज कर दिया क्लब हाउस यूज़ करने के लिए। द मेंबर ऑलरेडी उसके कंट्रीब्यूशन में आ जाता है, क्योंकि दूसरे जो मेंबर यूज़ करते हैं क्लब, उनको चार्ज नहीं लगता, खाली लाइसेंसी को लगता है। तो दिस मेक्स इट क्लियर कि अगर मेंबर यूज नहीं करता है, अगर लाइसेंसी यूज़ करता है तो उसको लगाओ, but it has to be charged from the member and not from the licensee. So this is why. Now 13 is the management of societies, friends. इसमें रूल 5768 जो ओरिजिनल रूल्स है उसको निकाल दिया गया है, नॉट एप्लीकेबल, और नया रूल है मैनेजमेंट रिलेटेड, बायलॉज के एडॉप्शन के बारे में, ड्यूटीज फंक्शन, बाय एंड लार्ज वही चीज़ है जो पहले के बायलॉज या रूल्स में है। वो जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में है। एक कोरम के बारे में एक चीज़ मैं रीड करता हूँ वर्बेटिम। इफ देयर इज नो कोरम within half an hour after time appointed for general body meeting of the society, the meeting, if convened upon requisition of member, shall be dissolved. In any other case, it shall be adjourned and later hour on the same day and the same place, as may have been specified in the notice, calling the general body meeting of the society, or to subsequent date not earlier than 7 days and later than 30 days. I'll explain this, very important. जनरल बॉडी मीटिंग, एक तो एनुअल जनरल बॉडी रहता है, दूसरा स्पेशल जनरल रहता है। स्पेशल जनरल बुलाने के दो तरीके हैं। एक 20% मेंबर रिक्विजिशन करे कि ये एजेंडा के हिसाब से आप मीटिंग बुलाओ, द कमिटी हैज़ टू कॉल द मीटिंग विद इन 30 days, देयर इज अ प्रोविजन। अगर वैसी बुलाई हुई मीटिंग है, कैसे, रिक्विजिशन के ऊपर, एसजीएम, अगर वो टाइम पे quorum नहीं है तो दैट मीटिंग विल बी डिसॉल्व, इट कैन नॉट बी एडजॉर्न एंड नेक्स्ट मीटिंग कैन नॉट बी कन्वीन विद इन 6 months देयर आफ्टर। दिस इज अ वेरी क्लियर। रिपीट करूं? आई रिपीट। जनरल बॉडी मीटिंग दो टाइप की रहती है, एजीएम जो स्टैट्यूटरी है सेक्शन 75 के हिसाब से, एंड एसजीएम। एसजीएम बुलाने के दो तरीके रहते हैं। एक रिक्विजिशन बाय द सम ऑफ द मेंबर, 20% मेंबर आके सिग्नेचर करेंगे, उसमें एजेंडा भी देंगे तो कमिटी को देंगे, तो कमिटी वो एजेंडा, वही एजेंडा वर्बेटिम, कॉपी टू कॉपी एंड मक्खी टू मक्खी बोलते हैं ना, और वो एसजीएम बुलानी है विद इन 30 days। लेकिन ऐसी जो मीटिंग बुलाई है रिक्विजिशन, वो मीटिंग में टाइम से quorum नहीं है तो दैट मीटिंग गेट डिसॉल्व, और वो एडजॉर्न नहीं की जाएगी। वो नीचे लिखेंगे ना कि हाफ एन आवर, उसका कोई मीनिंग नहीं। सच मीटिंग कैन नॉट बी एडजॉर्न फॉर हाफ एन आवर ऑल्सो एंड फॉर 7 to 30 days ऑल्सो। लेकिन जो कमिटी डिसाइड करती है, एसजीएम कमिटी बुलाती है, वो मीटिंग में अगर quorum नहीं है तो देयर आर 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, हाफ एन आवर के बाद वही जगह पे वही दिन मीटिंग बुला सकती है, और अगर वो दिन चांस नहीं है तो आफ्टर 7 days एंड विद इन 30 days आप वो मीटिंग बुला सकते हैं। और वो जो मीटिंग बुलाएंगे आप आफ्टर हाफ एन आवर और आफ्टर 7 और 30 days, वो मीटिंग में quorum की आवश्यकता नहीं है। ये सेम प्रोविजन है, जरा क्लैरिटी। हम जिस प्रोविजन 5 दिन का नेट टाइम देना है एचजीएम के लिए, देन ये रीडेवलपमेंट का मीटिंग का जो मैंने, हाँ, कैजुअल वैकेंसी के बारे में ये क्लैरिफिकेटरी भी है और क्लियर भी किया गया है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। कैजुअल वैकेंसी के लिए, जैसे वी नो द मैनेजिंग कमिटी हैज़ गॉट द पावर टू को ऑप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स,
इसमें कोई फर्दर गाइडलाइन नहीं था। कमिटी विल, अभी गाइडलाइन परफेक्ट है कि सेक्रेटरी हैज टू कॉल फॉर द नॉमिनेशन फॉर कैजुअल वैकेंसी ऑल्सो, और कॉल करके जो एप्लीकेशन आएगी उसको स्क्रूटिनी होगा, एलिजिबल है कि नहीं, लाइक इलेक्शन। एंड अगर रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा नॉमिनेशन है तो द कमिटी विल टेक द कॉल एंड डिसाइड कि इसमें से चार में से 3 लोग को हम ले लेते हैं। पर दिस इज हाउ द स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट है जो काफ़ी डिस्प्यूट कम करेगी। पहले क्या था, नोटिस बोर्ड की जरूरत नहीं थी, बुलाने की जरूरत नहीं थी, XYZ को बुलाओ, दैट विल बी पार्ट, और उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन भी होते थे। सो दैट इज नाउ रूल्ड आउट। The secretary or the authorized person shall invite nomination from members by giving 7 days notice on society notice board. This is the provision. Okay. Now, major repair के बारे में, maintenance and repairs, the managing committee is responsible for, and these are very important friends, please note down. वैसा ही कुछ provision है, लेकिन this is more clarificatory. The managing committee is responsible for maintaining and repairing of the society's property. B. The managing committee shall be competent to incur expenditure on repairs and maintenance of the society's property once in a financial year, provided the one-time expenditure does not. पहले क्या होता था, वो सब लोग जानते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे POP टूटा, उसका 50,000 खर्चा, बाकी सभी फ्लोर पे POP अलग अलग हुआ, सबका 50-50 खर्चा, 10 लाख रुपया खर्चा हुआ, इट वॉज ओके। अभी वो इट इज नॉट ओके। अभी एक ही बार साल में कमिटी कैन स्पेंड दिस काइंड ऑफ मनी। अगर एक से ज़्यादा बार है तो यू हैव टू गो टू द जनरल बॉडी, और लिमिट में चेंज हुआ, 1 से 25 मेंबर है तो 1 लाख रुपया, 26 से 50 मेंबर है तो 2 लाख रुपया, और 51 या ज़्यादा है तो 3 लाख रुपया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अमेंडमेंट ये है कि एक ही बार कमिटी अपने हिसाब से करवा सकती है। अभी अप्रैल महीने में करवाया कि मार्च में करवाया, इज अ ग्रेट इश्यू, लेकिन दैट इज व्हाट इज द प्रोविजन इज। ये सब रूल ड्राफ्टिंग करते हैं तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने का इरादा ही रहता है ब्यूरोक्रेसी का, ताकि रजिस्ट्रार के पास अब जाए, समझे। लास्ट, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी अंडर 154B, इसके अंदर जो ओरिजिनल रूल है 86A और 86F, इसमें भी अनफॉर्चुनेटली आप देखें ना, पहला जो सेक्शन मैंने बोला ना कि रूल 86A ही नॉट एप्लीकेबल बताया है, लेकिन जब आप रूल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 86B, C, D, E सभी को ओवर रूल करके नया रूल आया है, तो उधर खाली यही लिखा है कि 86A ही जाएगा, बाकी सब एप्लीकेबल है। दैट मीन्स देयर विल बी डुप्लीकेशन, उधर 86B, C, D, E आर ऑल्सो एप्लीकेबल एंड 106C14 ऑल्सो एप्लीकेबल, बट दिस इज वॉट इट इज। उसमें अच्छा प्रोसीजर दिया है रिकवरी के लिए, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, लेकिन क्लैरिफिकेशन है। ये सब चीज़ पहले इतना क्लियर नहीं था, अभी नया रूल्स आया है तो थोड़ा दे हैव इम्प्रूव्ड अपॉन दैट। उसमें लिखा हुआ है क्लियर कट, फॉर एग्जांपल, अच्छा एक एग्जांपल दे दूँ, ऑन द डेट फिक्स फॉर एपोसाइड मीन्स हियरिंग के लिए जब रिकवरी पिटीशन करेंगे ना 154B29 में, जो पहले 101 था, करेंगे तो उसमें सामने वाली पार्टी आई नहीं आई तो वो रजिस्ट्रार कुछ भी मैनेज करता था। अभी उसके सामने फिक्स है कि ये नहीं आई पर्टिकुलरली, तो पहली बार, अगर दूसरी बार आते तो आगे का रीज़न पूछना है कि क्यों नहीं आए। अगर रीज़न सेटिस्फैक्टरी है तो देन ही हैज़ टू एडमिट एंड टेक द रिटर्न स्टेटमेंट, अदरवाइज ही हैव टू डिसाइड द केस एक्स पार्टी। काफ़ी एक्स पार्टी डिसीजन रिलेटेड है। नॉन अपीयरेंस ऑफ एप्लीकांट वुड नॉट बी रीजन, अभी ये भी है, देखो सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर मेरी सोसाइटी ने एप्लीकेशन किया और कोई वजह से मैं एडवोकेट और मैं सेक्रेटरी और मैं मैनेजर डिड नॉट गो, तो रजिस्ट्रार के पास बना था टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन बिकॉज ही डिड नॉट कम, नाउ ही कैन नॉट डू इट बिकॉज ऑफ दिस। नॉन अपीयरेंस ऑफ एप्लीकांट वुड नॉट बी रीजन फॉर डिसमिसल of the claim, and the registrar shall decide the application on merit. So these are also important. ये जो नए रूल्स आए थे 106C14 तक, एक से वो क्लियर हो गए। अभी जो रूल्स है उसमें जैसे कि वो फॉर्म निकालने हैं J1 से लेके J2, M1 से लेके M14, इसके रिलेटेड है।
So there is not much about it. Friends, I conclude my presentation, and whatever query you have, we will address during the question hour.